Hey everyone, welcome to the session. This is Deepika Avasthi and I am going to take NMAT Workshop 1. आज हम बहुत सारे verbal के questions करने वाले हैं. So let's get started. Your very first question, apparatus. Now, what do you understand by the word apparatus? Right? You have to find the closest meaning of the word. So apparatus are tools or things which we use in lab to perform an experiment or to perform something, right? An action. So उससे closest word क्या है? Tools तो अपने पास है नहीं, तो क्या आप use करोगे? Premises means place. So this is not possible. Functions not really. Regulations भी नहीं. Stationary चीजों से आप लिखते हो. You need stationery to let's say take an exam, है ना? Pencil, rubber, pen. Machinery most likely a tool, isn't it? हमको बहुत सारी मशीनरी चाहिए जहां पे हमें कोई चीज मेजर करनी है. दिस इज मोर मशीनरी से ज्यादा क्लोज होगा apparatus than stationery, isn't it? All right, great. Now let us move to next question. Acutely, what is the closest meaning word for acutely? He is affected acutely by this weather, right? We are affected. We winters are almost weather change हो रहा है, so we some of us are affected acutely, means very highly. बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं. I think you know the meaning of other words. Legally, intentionally, primarily, mechanically. ठीक है. Muted. Meaning? If I say some of the colors are muted because of bright colors, right? मैंने इसमें यहाँ पे इस फैब्रिक में बहुत सारे डार्कर कलर्स, डार्क ग्रीन, डार्क रेड ऐड कर दिया, तो व्हाइट या येलोइश, लाइट पिंक आर म्यूटेड नाउ. वो दब गया कलर, राइट? सो म्यूटेड आल्सो मींस दैट अपार्ट फ्रॉम म्यूटिंग द टीवी, लाइक बंद करना, व्हाट इज सबड्यूड, राइट? सबड्यूड. ठीक है. एम्पैथेटिक होना मींस टू अंडरस्टैंड समवन, to understand someone. Negligible, nullify, I think you know. ठीक है. Okay, चलो. This is a grammar question. Bad movies affect people living in today's society more than. So this is the underlying portion which has error. इसका आंसर बताओ. So more than they had been done, no. They would have done, no. They did in previous years, could be. Or they did those refers to what? More than they had done. So bad movies affect, right? Simple present, तो मुझे simple past चाहिए. So that means then they did, they affect, then they did in the previous year, right? So when you compare something, try to keep it as comparable or similar as possible. The reason he has been so fat is because he never takes exercise. So what's the error in this part? राइट. सो रीजन ही फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन तो लिखा हुआ है, तो रीजन के साथ बिकॉज तो गलत ही होगा फॉर श्योर. सो ये हटा देंगे और ये भी हटा देंगे, राइट? रीजन एंड बिकॉज आर द सेम थिंग्स. Okay, so also you don't take exercise, you do exercise. So because he never does exercise, isn't it? So 3, perfect everyone. Nowadays there exists a spirit of dash among the various departments. One second. Yeah, I'll give you a minute to read and then let me know your answer in the chat box. Yes. So nowadays there exists a spirit of something among the various departments of the university. This has led to a number of interdisciplinary research publications due to interaction of various, right? Interdisciplinary research हो रही है अभी. इंटरनल बहुत सारे डिसिप्लिन, सब्जेक्ट्स, एरियाज बेसिकली मिलके काम कर रहे हैं, इंटरैक्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं various research groups which might not otherwise have been published. That means there's a lot of cooperation, not casteism or favoritism and all these things. All right. Okay, this question, everyone.
So this is your blank. Which of the following sentences do you think can fit out of these three? Can fit the blank? Two minutes. So first sentence says, we agree that our articles pointed out the level of local support for the law and order forces trying to capture weapons. जो जितना local लोग support कर रहे हैं पुलिस को law को, जिससे पता चल रहा है कि हाँ of course like everybody is trying to capture weapon. Fine. और नेक्स्ट लाइन है, देयर इज नो डाउट दैट द मैन इज अ क्रिमिनल एंड शुड बी ट्रीटेड एज वन. अगर मैं बोल रही कि वो तो है, देयर इज नो डाउट कि ही इज आल्सो रॉन्ग, दैट मींस हम बोल रहे हैं कि वो तो है ही, बट अभी के लिए व्हाट शुड वी डू, द रियल इशू. तो वी कांट से कि नो वेयर वी फॉरगिव, कंट्रोल मींस टू फॉरगिव द मैन एक्शंस. ये बोल के थोड़ा आई विल से कि देयर इज नो डाउट दैट द मैन इज अ क्रिमिनल, इजंट इट? और वी डिड नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट. नो, वी आर सेइंग गवर्नमेंट को भी अपना काम ठीक से अभी करना चाहिए ताकि ऐसा और कोई ना करे. सो द रियल इशू इज दैट. सो मेन प्रॉब्लम है कि हमें पूरी पॉलिसी फिर से ठीक करनी चाहिए, रिवैम्प करनी चाहिए. और जस्ट बिकॉज पॉलिसी ठीक करते ऐसा नहीं कि पॉलिसी ही गलती है. ऑफ कोर्स दैट मैन इज आल्सो अ कल्प्रिट, इजंट इट? सो ओनली सी फिट्स मीनिंगफुली हियर, इजंट इट? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, व्हिच वर्ड डू यू थिंक विल फिट इन? So he quickly glanced through the book to find what it said about the Indian economy. Perfect. The council urged the court to dash down the obnoxious law. See, dash down. या तो हम बोलेंगे to cancel the law, है ना? Cancel down नहीं बोल सकते. So this is, we cannot, this is to be eliminated. We cannot choose this. और to enact the law नहीं, obnoxious है. Obnoxious मतलब bad law, negative word है. तो इस बुरे law को हटाओ. So strike down, right? Not declare या enforce मतलब लोगों को बोलना कि please follow the law. So हम लोग council ने कोर्ट को रिक्वेस्ट की. council means group of experienced people जो नए laws लाने के पहले डिस्कशन करते हैं कितना जरूरी है कितना नहीं. So they told court to remove this law. So strike down the law. All boats are ships. Some ships are jinxed vessels. Okay, syllogism, students. चलो बताओ क्या आंसर हो सकता है? Chat box में you have 1 minute to draw and make or figure out the answer. Also दोनों में could be लिखा है. Could be मतलब अगर एक भी possibility है तो आपको उसको choose करना है. So some boats could be jinxed vessels. चलो बनाते हैं. Some boats could be jinxed vessels. Boats jinxed vessels, है ना? Some jinxed vessels could be ships. Sorry, अपने को तो इसमें से बनाना है. I'm sorry. I'll just make it again. Yeah. So let's start with this question. This is a syllogism question. All boats are ships. All boats are ships. Some ships are jinxed vessels. So कुछ ships jinxed vessels हैं. So ये जो है, these are jinxed vessels. Also इस सर्कल को अगर हम थोड़ा और बड़ा बनाए तो ये बोट को भी ओवरलैप कर सकते हैं अगर हम ऐसे चाहें तो, है ना? जस्ट एक या ऐसे भी छोड़ सकते हैं. फाइन. अब इसमें से कैन वी कंक्लूड दैट सम बोट्स कुड बी यस. अगर मैं इसको बड़ा बनाती हूँ तो सम बोट्स कुड बी जिंक्स्ड वेसल्स. यस, राइट. तो वन तो बी फॉलोज, कुड बी है. अगर होता आर तो 100% हम नहीं चूज करते. सम जिंक्स्ड वेसल्स कुड बी शिप्स, 100% शिप्स तो होंगे, बट नॉट बोट्स, राइट? अगर मैं इधर तक ही छोड़ दूं ये भी पॉसिबल है, isn't it? So both, in this case both follows, right? ठीक है. Okay, let's solve next question. Next syllogism question. All Peter are Piper. All Peter are
are piper. Some pickle are piper. So some pickle are piper. अब क्या इसमें से हम बोल सकते हैं some Peter are pickle? No. Some pickle are Peter? No. Right? Because only some pickle are piper. Peter not necessarily. So neither of them follows. Right? अगर कोई बोलेगी पर सर्कल इधर पे टच हुआ तो यस एंड नो. अगर यस एंड नो है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो तो नहीं हो सकता. यू हैव टू चूज नो. राइट? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन. नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्वेश्चन. अगर किसी को सिलॉजिज्म नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो दैट यू नीड अ सेशन ऑन सिलॉजिज्म बेसिक्स प्रैक्टिस ऑफ कोर्स. तो मैं एक प्रॉपर एक सेशन लूंगी 2 घंटे का, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एट द सेम टाइम लर्न करेंगे कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे आंसर चूज करना है. सो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए इफ यू वांट अ सिलॉजिज्म वीडियो. अगर क्योंकि एग्जाम पास में है, सो आई एम अज्यूमिंग आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, बट आपको ये सब कॉन्सेप्ट या बेसिक के जो जो चाहिए आपको आप बता दो एक बार. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. मैन इज बॉर्न फ्री. अब इसमें से क्या हम ये दो चीजें अज्यूम कर सकते हैं? अगर हाँ कर सकते हैं फर्स्ट वन, तो आप ए चूज करो, बी वन बी. अगर लगता है दोनों ठीक है, नाइदर मीन्स यू हैव टू से ए बी सी डी में से यू हैव टू गिव मी एन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. देखो, अगर मैं बोल रही हूँ यू आर बॉर्न विथ अ टैलेंट, राइट? एवरी ह्यूमन इज बॉर्न विथ अ टैलेंट. तो कहना इसे कि भाई टैलेंट इज बर्थ राइट ऑफ एवरीवन. राइट की बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब जनरली पीपल और मोस्टली पीपल बॉर्न विथ अ टैलेंट, या ऑल ह्यूमंस हैव ह्यूमन राइट. सबका ह्यूमन, इसमें ह्यूमन राइट की बात भी कहाँ से आई? सो राइट्स इज अ वेरी एक्स्ट्रा वर्ड. वी कांट अज्यूम फ्रॉम दिस लाइन की हमारा बर्थ राइट है फ्रीडम, या हमारे सबके राइट्स हैं ना. राइट इसमें से नहीं बोल सकते. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ एट. अगर आप हंस रहे हो तो लोग भाई आप पे हंसेंगे या आपके साथ हंसेंगे. तो इसमें से क्या हम अज्यूम कर सकते हैं? दैट पीपल जनरली लाफ, मतलब अक्सर हंसते ही रहते. नहीं, वो हंसेंगे जब आप हंसोगे, ऐसा नहीं कि हंसते ही रहते हैं. सो नो. लाफ्टर सिंबलाइजेस हैप्पीनेस. हैप्पीनेस के बारे में वी कांट लाइक लाफ रिलेटेड कुछ लगे, बट लाफ्टर का मतलब लोग खुश हैं, नो आइडिया, राइट? एटलीस्ट फ्रॉम दिस वन सेंटेंस. सो नाइदर. सो इसमें अपना आंसर होगा डी, करेक्ट. और इसमें भी अपना आंसर होगा डी. नाइदर एक्स नॉर वाई इज इम्प्लिसिट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्स ऑफ एक्शन एवरीवन, राइट? आई विल जस्ट टेक दिस हियर. सो आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना कौन सा. लाइक लेट्स रीड द स्टेटमेंट टुगेदर. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड वेरियस अथॉरिटीज. कोऑर्डिनेशन नहीं है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और बहुत सारे अथॉरिटीज डिपार्टमेंट्स के बीच में, हैज रिजल्टेड इन स्टूडेंट्स आउटस्टेड फ्रॉम वन कॉलेज सीकिंग माइग्रेशन टू अनदर. मतलब ये सेंटेंस समझोगे, अगर मैं किसी एक कॉलेज में हूँ और मैं स्टिल सोच रही हूँ कि यार मैं उस कॉलेज में बेटर, उस कॉलेज में चली जाती हूँ, मेरी बातचीत चल रही है, अभी मैं इसी कॉलेज में हूँ, बट आई एम टॉकिंग टू कॉलेज वाई, राइट? मैं एक्स में हूँ, मैं वाई में बात कर रही हूँ कि आप मुझे एडमिशन दे दो. तो अगर मेरे कॉलेज को पता चलता है ये चीज, तो मेरा कॉलेज मुझे निकाल देगा. और ऊपर से क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है दो कॉलेजेस के बीच में कि वो बात कर ले कि भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं आप मत लो, वो नहीं, इसलिए वो कॉलेज से बच्चों को ही निकाल देते हैं. अब इस केस में कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्या कर सकते हैं? अब इसमें कोई एंटी सोशल एक्टिविटी की तो कोई बात नहीं है ना. ये तो कोई अगर दूसरा देख रहा है तो या तो आप क्लियर बोल दो कि भाई ऐसे अलाउड नहीं है, एक बार आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आप नहीं जा सकते दूसरे में, इजंट इट? अदरवाइज और क्या कर सकते हैं? द एडमिशन टू ऑल कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको सेंट्रलाइज कर दे कि भाई यूनिवर्सिटी के थ्रू आप एडमिशन लो, जिस भी 10 कॉलेज 10 में से जिस भी कॉलेज में आपको जाना है, ताकि कुछ भी फिर आपको चेंज करना है नहीं करना है तो ताकि लेकिन क्योंकि अभी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो अगर सेंट्रलाइज हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, तो बी डेफिनेटली हो सकता है. करेक्ट. इफ अ स्टूडेंट इज आउटस्टेड फ्रॉम, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज से निकाल देते हैं, द इंफॉर्मेशन शुड बी सेंड टू ऑल अदर कॉलेज. तो सब यूनिवर्सिटीज को बता दो, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट? सब उनको बता दो. तो उससे क्या, ताकि उसको कहीं एडमिशन ना मिले. दैट्स नॉट अ सोल्यूशन और अ कोर्स ऑफ एक्शन, राइट, टू दिस प्रॉब्लम. सो ओनली टू कहाँ पे है? दिस. ठीक है. सी नेक्स्ट वन एवरीवन. आई विल गिव यू अ मिनट टू रीड.
सो फेस्ड विथ अ सोर्स क्रंच मतलब जहां जहां से उनके आई वुड से रिसोर्सेज मटेरियल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान आता था वो अभी नहीं आ रहा है. डिप्रेशन एज एन इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ कोर्स राइट, इकोनॉमी डाउन जा रही है. सो स्टेट वाइज अनलाइकली टू अचीव द टारगेटेड परसेंट कंपाउंड ग्रोथ, जो भी उन्हें ग्रोथ रेट सोचा है नाइन्थ प्लान मतलब इस साल में, वो नहीं शायद हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस टू सेवरल दीज टू रीजंस. कोर्स ऑफ एक्शन, नाउ व्हाट्स द कोर्स ऑफ एक्शन कि किस जिस जिस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सोर्स क्रंच को इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम करने के लिए क्या करें, डिप्रेशन इम्प्रूव, इसको हम थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा फिगर आउट करें, है ना, ये हो सकता है. यस. द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट वाई शुड बी कंपेयर्ड विद अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स के साथ हम कंपेयर करें अपने आप को, उससे क्या हो जाएगा, हमें तो अपने प्रॉब्लम्स पता है ना, सोर्स क्रंच है और डिप्रेशन है, इन्हीं चीजों को ठीक कैसे करें, दैट्स व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. दूसरे स्टेट्स का अगर वो प्रॉब्लम ही नहीं है या और दूसरी ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो अकॉर्डिंगली वो सोल्यूशन लिखेंगे. टू स्टेट्स का एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती है, सो दिस डज नॉट मेक सेंस, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. द टारगेटेड ग्रोथ प्लान शुड बी रिड्यूस, तो 10th प्लान के लिए भी अभी कम कर दो. अगेन 9th प्लान में अभी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा फार फेच्ड हो जाएगा, सो इन सब में 2 सीम्स बेटर. So again, option 3. Yep. Take a look. Let me know if there's any doubt. Sure. Next question, everyone. द वेदर ब्यूरो हैज अनाउंस्ड, एक बुलेटिन में मतलब एक पेपर में या न्यूज़पेपर में वेदर ब्यूरो ने अनाउंस किया है, एक फोरकास्ट दिया है. फोरकास्ट मतलब ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 2 days में हैवी रेनफॉल हो सकती है ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, विच मे कॉज 100% मे कॉज वाटर लॉगिंग इन सेवरल, यहाँ पे इतनी बारिश होगी शायद वाटर लॉगिंग हो जाए शायद, राइट. अगेन तो क्या हम लोगों को एडवाइस करें कि अभी घर पे ही रहो, नहीं, दिस इज जस्ट अ फोरकास्ट, अगर हुई तो लोगों को हम पहले से रेडी कर सकते हैं. बुलेटिन शुड बी वाइडली पब्लिसाइज्ड कि चांसेस हैं, आप हो सकता है तो आप रेडी रहो अकॉर्डिंगली, नहीं हुआ तो यू कैन गो आउट, इजंट इट. द सिविक अथॉरिटी शुड बी केप्ट इन रेडीनेस फॉर रिमूवल ऑफ वाटर, हाँ उनको सिविक अथॉरिटी जो है वहां की बीएमसी है म्यूनिसिपैलिटी पार्टी है, उनको रेडी रहना पड़ेगा, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो हम सेम डे या 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. सो 2 इज डेफिनेटली समथिंग वी कैन फॉलो, राइट. एंड 1 भी कि हम अगर पब्लिसाइज कर देंगे, फोरकास्ट तो सबको बताना ही चाहिए क्या होने वाला है क्या नहीं. So 1 and 2 make sense. 3 does not. So we'll choose option 1. Okay. Here you have to tell me यहाँ पे क्या आना चाहिए. अब देखो ये दोनों कैसे है, आप पहले फिगर आउट कर लो, देन आई विल हेल्प यू. तो +3 आप कर रहे हो सी में तो एफ आ रहा है, करेक्ट. और ओ में +2 तो क्यू आ रहा है. देन अगेन +3, अगेन +2, इनके सारे अल्फाबेट्स में +3 +2 +3 +2, एंड देन दिस ये अल्फाबेट बन रहा है. तो एक पैटर्न है, तो सेम पैटर्न मैं इधर पे भी लगाऊंगी, इजंट इट. लैंग्वेज में भी, तो अगर ये स्टार्टिंग का है ए, राइट, तो फिर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंगली, +3 अगर मैं इधर पे लगाती हूँ तो ओ आता है, राइट, ओ से सारे ही हैं, इसमें +2 हो जाएगा तो ओ सी, राइट, ओ सी है तो दिस ऑप्शन विल गो अवे, करेक्ट. फिर अगेन एन ओ पी क्यू +3 इसमें लगाएं, क्यू हो जाएगा ओ सी क्यू है, तीनों में ही है, फाइन, राइट. एंड देन लास्ट का लगा देते हैं, ठीक है, +3 2 +3 +2, दिस विल बी आई एक्स. देखो यहाँ तक तो सेम ही है, तो एक्चुअली हमको सेकेंड लास्ट देखना पड़ेगा, यहाँ पे आई चाहिए कि जे चाहिए. सो जी, देखिए +2 इधर पे होगा, अगर आप देखोगे तो हमको चाहिए यहाँ पे, सॉरी +3 होगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आर यू गेटिंग दिस, आप लगा के देखो एक बार. LANGUAGE, +3 +2 +3 +2 +3 +2, right. So GH, right, so yeah, HI, so फोर्थ होना चाहिए, सॉरी फोर्थ होना चाहिए. ब्लॉक्ड, ये देखो मतलब
यहाँ से जो सेकेंड वर्ड है स्टार्टिंग से बी, तो यहाँ से जो सेकेंड लास्ट वर्ड है वाई, दिस इज द पैटर्न दे आर टेकिंग। ठीक है, समझ गए। तो इफ जेड इज द लास्ट वर्ड, तो सेकेंड इन सब में जो वर्ड होगा ए होना चाहिए, लाइक दिस वन या दिस वन, ये दोनों तो नहीं हो सकते उस पैटर्न से, राइट। अब देखो एक्स वाई जेड थर्ड लास्ट वर्ड है, तो थर्ड लास्ट वर्ड इनमें कहाँ पे है, ये रहा सी, तो ऐसे आप कर लो, isn't it? तो आपको सारे वर्ड्स करने की जरूरत नहीं है, you can simply just save your time like this. All right. Yeah. So let's start with question number 39 everyone. Bouvet and tavern. राइट, तो ये टैवर्न समझ लो एक होटल को हम बोलते हैं, और बुवेट इज उसमें एक छोटा सा बार, सो पार्ट ऑफ इट, राइट। तो हम दोनों सिमिलर चीज ही है, बिगर बार या स्मॉलर बार है, समझ दोनों एक ही चीज है, पर थोड़ा डिफरेंस है। अब कहाँ पे दो सिमिलर चीजों की बात करें, एग्जैक्टली सेम नहीं, मतलब हिम्न एंड सॉन्ग एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि दोनों सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस है। फॉली, मैडनेस, एसिम्प्लिस्टिक, यूनिफाइड, दीज आर एग्जैक्ट सिनोनिम्स, राइट। Whereas Bud and hill are two different kind of mountains, like दोनों small mountains है, पर पठार, पहाड़ी हम ऐसे बोलते हैं ना, so that's how they are similar but they are not exactly same, and we'll choose A. Astrolatry means worship of stars, planets, celestial bodies. So कहाँ पे worship of what? There's no word as such zoolatry या मेरियोलेट्री है, डेमन जहाँ पे हम जू को या वर्जिन मेरी को डेमन को क्या बोलते हैं वर्शिप करते हैं, बट आइडोलेट्री यस इज अ फॉर्मल वर्ड वेयर वी वर्शिप आइडल्स, आइडल्स एज इन मूर्तियां। ठीक है। माइग्रेंट मीन समवन जो हमेशा घूम रहा है, माइग्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, सेटल्ड, सेटल्ड में जो एक जगह पे फिक्स है, सो उस हिसाब से लाइक दोनों ऑपोजिट हो गए एंटोनिम्स, सो अकॉर्डिंग टू दैट which one will you choose? अब यहाँ पे odd one out है actually. Gallant and brave both are synonyms. Mendicant means poor, rich means, तो ये antonym हो गया, राइट, ये एंटोनिम है। स्टैटिक जो एक जगह पे रहे, डायनेमिक जो हमेशा मूव करती है, ये भी एंटोनिम हो गया। जैब मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, प्रेज तारीफ करना, ये भी एंटोनिम्स हो गए। तो मुझे ऑड वन आउट की तरह देखना पड़ेगा इसको, एंड आई एंड अप चूजिंग टी। आर यू गेटिंग दिस? सो हर बार जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हमें सेम चीज मिले, वी देन वी हैव टू डू ऑड वन आउट एज वेल। Also if you're thinking but this is like kind of matching, migrant एक जगह पे रहता है static से, पर again उल्टा है, उसी तरीके से हो, या तो ये होता डायनेमिक is to static, then maybe we could have considered this. All right, question number 38 everyone. Your sign bear, right, bear. So कौन सा इसमें से गलत है एक्चुअली, ये आपको देखना है। Your sign means bear, vulpine means fox, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे होना चाहिए था लियोनाइन, लियोनाइन मीन्स लायन जैसा, है ना। पोर्साइन मीन्स पिग लाइक, पिग जैसा। ल्यूसाइन इज अ केमिकल, राइट, फाउंड इन फूड, many proteins, it's a chemical, naturally produced chemical in our body. All right, now let's figure out the meaning of all these phrases here. Of the first water, if I say your handwriting is of the first water, that means is of great quality, is of the highest quality, the best. To fit the bill, right? If I say you will definitely get this job because you fit the bill, that means you are suitable. A wild goose chase. If I say just don't prepare for 5 exams at a time because some of the exams will be a wild goose chase, मतलब आप नहीं कर पाओगे एक साथ 5 एग्जाम्स की तैयारी एक ही मंथ में करोगे, तो कुछ एक दो एग्जाम से डेफिनेटली वो वेस्ट ही जाने वाले, isn't it? नहीं हो पाएगा। सो एन एफर्ट इन वेन, जो आपको पता है कि भाई ये चीज बहुत मुश्किल से होगी या नहीं होगी। द पर्सन वॉज गेटिंग वेरी ओल्ड एज वेल एज very sick continuously, and that's why recently he kicked the bucket, that means to die, right? So it is just euphemism, better way of saying someone who has died, like someone has kicked the bucket. At sixes and sevens, तो अगर बोलूँ यार हम लोग अभी डाउटफुल है कि ये आंसर होगा कि वो आंसर होगा, so that means like we are in disagreement. If the group is at sixes and sevens, means the group is at disagreement.
सो इन डिसअरे. पर एडवेंचर को बताओ मीनिंग. यू कैन रिमेंबर इज इट परहैप्स, शायद. सो परहैप्स, शायद से रिलेटेड कौन सा है? डाउट की मे बी, आई एम नॉट श्योर. परहैप्स दैट्स द केस, मे बी दैट्स द केस. यप. ठीक है. नेक्स्ट. मैन हैज फुट. हूफ is for horse. Perfect, everyone. Day and night are opposite. So kind मतलब nice, good person. तो उसका opposite क्या होगा? देखो. Correct. Cool. हट मैंशन, दोनों ही बेसिकली घर हैं. हट इज छोटा घर, मैंशन इज विला, बड़ा घर. वैसे ही रैबिट, व्हाट शुड वी पुट? एलिफेंट. परफेक्ट. करेक्ट. ठीक है. ऑल राइट. सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट. देखो, सम नॉट ऑल. कुछ लीडर्स डिसऑनेस्ट हैं. और फिर मैं बोल रही हूँ सत्यप्रिया इज अ लीडर. तो व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम हियर? आप इसको सिलॉजिज्म की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, है ना. इफ सत्यप्रिया इज अ लीडर एंड देन सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट. कुछ होते हैं, सब नहीं होते. तो जरूरी नहीं कि सत्यप्रिया भी डिसऑनेस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. सत्यप्रिया इज ऑनेस्ट. नॉट डिपेंड्स, हम इस सर्कल को कितना बना रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, राइट. शी इज डिसऑनेस्ट, डिपेंड्स. बट शी कैन बी डिसऑनेस्ट, हाँ ये हो सकता है, इजंट इट, इन दिस केस. यप. ठीक है. A sentence is split into 4 parts. Mark the part that has grammatical error. So I'll give you now to read this question. आप मुझे बताओ किस पार्ट में एरर है. Yep, 1, 2, 3, 4. फोर्थ. स्ट्रेंथ ऑफ. ईच लिखा है तो ईच के बाद हर चीज सिंगुलर है. सो स्ट्रेंथ ऑफ ईच पर्सन. Yeah, all right. Question number 15. Despite the evident tensions, both sides insist that compromise can be worked out given their strong historical links. So what do you think? Where is the error? Both sides, दोनों ही sides ने insist किया कि compromise हो सकता है given their strong historical links. So 2. Very good. Question number 16, everyone. Yep. If we examine the saturation aspect, the enterprise market is a short-term revenue buying program. Is a, so program होना चाहिए, not programs, है ना. So fourth. All right. ठीक है. Again. So we are continuing the grammar questions. Therefore, your taxability in India. ओके, यहाँ पे मैं आपको आपको चूज करना और ग्रामेटिकल एरर, बट आउट ऑफ 4 विच वन इज करेक्ट, राइट. किसी 3 में गलती है एंड 1 इज करेक्ट. दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट हियर. Which one is correct?
So therefore your taxability in India will depend on, depends नहीं, will depend on the total time spent by your consultancy services in providing consultancy countries spent, right? तो इन दोनों में गलती है. By your consultancy countries in providing consultancy services. So only one is correct, right? India outstrips other countries in terms of employment and number of companies. 3. ठीक है, चलो let's solve this question. I'll give you a minute to read. आप लोग पढ़ लो. So the one essential dash factor means important, essential and important. So it may say important, indispensable. Factor in a company is being able to create the right customer experience that is so necessary for continued survival of its people. A company will have among its employees, so उसके कंपनियों के पास क्या क्या होगा? Employees होंगे, planners होंगे, doers होंगे. तो इनसे similar क्या word है? Enablers. But it doesn't pay to forget that all of them are people. But right, basically, you have to remember that all of them are human beings, people, and that their roles can never be fixed, like can never be compartmentalized in a rigid fashion. Anything else you feel? Morbid is crazy. अगर आप किसी चीज को कंपार्टमेंट की भाई आपको इतना ही काम करना है तो वो थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा, नॉट क्रेजी, है ना? क्रेजी तरीके से आपने किया, मतलब आप सिस्टमैटिक हो बट उस वजह से people are people and they would want to do many new things also. Correct? ठीक है, चलो next question. Okay. Dilapidated means almost collapsible, टूटा फूटा. Restore मतलब फिर उसको ठीक करना, renovate करना. So what do you think? Which one is closest? Can we say malfunction and repair? कोई चीज machine is not functioning well and then you're repairing it. बाकी सब में हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं. So to behead, guillotine. Basically it's a place जहाँ पे लोगों को पहले behead करते. It's a machinery, a place जो tool बनाया जाता था to behead people. वैसे ही कहाँ पे क्या करते हैं? Like place और उस place का क्या काम है? Like that. So इन सब में कोई place है नहीं. Pictures, nail, murder तो place ही नहीं. Gallows, let's say if we know it, great. If we do not know, then right, gallows is the place basically जहाँ पे लोग को hang किया जाता है. ठीक है. Okay, para jumble everyone. Please let me know the sequence. So we have to start with B. हमारे yet it है ना, the matter inside a why we are talking, what exactly we are talking about? We are talking about one white dwarf called Kuiper star. तो B से हम start करेंगे. B से ये दोनों options हैं. These two will go away.
देन बी ए सी तो सेम ही है, तो डी ई या ई डी, दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। देखो डी में हम बोले द मैटर इनसाइड व्हाट डॉफ इज डेंस, कितना डेंस है, इट इज सो डेंस दैट इट इज थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स। फिर हम उसके डिटेल दे रहे हैं, सो फर्स्ट यू से एनीथिंग जनरली और फिर आप बाद में डिटेल या डेटा देते हो कि भाई इतना डेंस है, ज्यादा है, कम है, ऑल दिस। डी ई होना चाहिए, दैट मीन्स 3 इज द करेक्ट आंसर। या सो बी ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट पैरा जंबल। 'Yes students, what's the answer?' So this say we cannot start the same basic. Which basic? Right. So we have to start with C. C से start होगा. So these two cannot be the answer. C A B. Again last का देखो D E या E D. 1 minute for you to solve. Yeah. So difference is that stimulus reaction pattern is not wired into animal's nervous system by its own genetic code. The genetic code से wired नहीं, तो किससे होता है? Instead the reaction is wired to some outside. तो inside चीजों से wired नहीं है, किसी outside चीज से. So E D. Fourth is the correct answer. Next question, everyone. One minute to solve. So if you look at a number of important inventions and discoveries that have been made in last over the last 1,000 years, you will find that most of them occurred in last 300 years. Last 300 साल में ही ये सारी डिस्कवरीज हुई हैं. तो ऐसा क्यों? लास्ट 300 1000 इज मैक्सिमम, लास्ट 300. व्हाई दिस? व्हाट प्रिवेंटेड प्रोग्रेस बिंग इन द प्रीवियस 7 से पिछले 700 साल में क्या प्रॉब्लम थी जो 300 लास्ट 300 इयर्स में नहीं थी? और फिर हम रीजन दे रहे हैं. सो ए सी ए डी बी, आई मीन ए डी बी. सो ए डी बी इधर है, इधर ही है एक्चुअली. ए सी इधर पे स्टार्ट हो रहा है. फिर देन वी आर गिविंग रीजन कि मिस्टेकन बिलीव दैट इफ एक कोई साइंटिफिक मॉडल आ गया है, कुछ एक्सपेरिमेंट में से किसी ने कुछ कंक्लूजन निकाला, तो वो कंप्लीट पिक्चर है ऑफ द रियल थिंग. बस उसके आगे अब उसमें और कुछ एक्सपेरिमेंट या और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता. तो और जो भी डाउट करता था इस चीजों की, नहीं नहीं जो भी पता चला वो सही हो सकता है, बट इट के नॉट बी कम्प्लीटली ट्रू, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था कुछ केसेस में, या दे मे बी एंड अप चूजिंग देयर लाइव्स. राइट, लोग भाई मार देते थे उनको, ये सारी सारी चीजें होती थी. तो इसलिए रिसेंटली लोगों को समझ आया कि नहीं, जरूरी नहीं है हर चीज साइंटिफिकली जो इन्वेंशन वो पूरी तरह सही और गलत भी हो सकता है. और पहले उसको क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे, बट अब लास्ट 3 इयर्स कर सकते थे, एंड इसलिए इतना साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ. सो या इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. पैरा जंबल.
So this concept, to support it, to support what? What's the concept? And so C से start होगा. After a great number of generations, tortoise on the arid islands will have longer necks and those on the what than those on the watered islands. Basically turtles के longer necks होंगे. Okay, तो इसका मतलब and so one species will have given rise. एक species से दूसरी species आ रही है, ऐसा नहीं कि naturally इनके evolve होती है species, and that's what is happening. तो इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो डार्विन को, डार्विन के माइंड में, अंटिल लॉन्ग आफ्टर इट लेफ्ट द गैलापागोस, मतलब जो ये लैंड है आइलैंड, उसने छोड़ दिया कि यार ठीक है ऐसा चेंज तो हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? फॉर 25 ईयर्स ही, अब भाई ही किसको रेफर कर रहा है? डार्विन को. क्या और कहीं डार्विन लिखा है? नहीं लिखा है. सो बी ए इज वन पेयर एंड सी डी इज अनदर पेयर, राइट? तो सी डी कहाँ कहाँ पे, तो डी सी ये गलत है, यहाँ पे भी सी डी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. तो सी डी और बी हमारे दोनों पेयर्स भी इधर है, सीक्वेंस भी इधर पे ही है ना. दिस कॉन्सेप्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग. ही मीन्स डार्विन, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. Okay, if you see, read carefully, CB is a pair. CB students. यहाँ पे हम बोले intelligent is expressed as IQ and tests are developed to indicate what an average child of certain age can do, what a 5-year-old can answer, what a 4-year cannot. For example, that means in other words, intelligent tests give us a norm for हर एक each age के लिए हमें पता चलता है intelligence test से क्या what is intelligent for a certain age or for a certain person at a certain age. तो सी बी तो डेफिनेटली एक पेयर है, या तो अब सी बी एक्चुअली इन दोनों में ही है. और देखते हैं. बिनेट, देखो इधर पे लिखा है, बिनेट डेवलप्ड द फर्स्ट सेट ऑफ सच टेस्ट्स इन द अर्ली 1990s टू फाइंड आउट विच चिल्ड्रन इन स्कूल नीडेड स्पेशल अटेंशन. ओके, और फिर उसके बाद जब उसने ये फिगर आउट किया तो since then intelligence test has been used to separate dull children, weak children from average or bright children, so that special education is provided to the dull. ठीक है, तो डी ए इज अनदर पेयर, यहाँ बी ए. सो क्लियरली दिस इज आवर आंसर. इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड बाय टेस्ट्स. बिनेट ने इस तरह के टेस्ट डेवलप किए टू फाइंड आउट चिल्ड्रन के लिए कि किसको स्पेशल अटेंशन चाहिए. उसे डल चिल्ड्रन को डिफ्रेंशिएट करते थे फ्रॉम एवरेज एंड ब्राइट स्टूडेंट, ताकि पता चले किस एज में किसको कम समझ आ रहा है, ज्यादा समझ आ रहा है. एंड इस तरह के जो टेस्ट हैं ये दे गिव अस अ नॉर्म फॉर ईच एज ऑफ कोर्स, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ ग्रामर क्वेश्चन. आउट ऑफ 4 विच इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन. जो अंडरलाइन है उसमें कुछ एरर है, देखो.
Yep. ठीक है. The government ordered local officials to control public unease over the regime's impending economic collapse. The government ordered local officials to do this. Right? I have ordered this person to, not should do this. To ordered to do this. Perfect, everyone. Okay, ये भी देखो. Same तरीके का question है. In response to higher oil prices, window manufacturers have improved the insulating capability of their products. Their windows have been built to conserve energy. So window manufacturer they have improved the insulating capability of the products. So product as in window, क्या वो insulate करती है बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, ठंडी बाहर है तो अंदर नहीं पता चलेगी, तो अब उनके windows build हुए energy बचाने के लिए, घर की energy. They are built, not they are being built or they have been built. They are built for this purpose. ठीक है. Please take a look at this. So पहले तो compiled not complied है ना, ये तो गलत ही है. So complication भी नहीं, compiling या compiled, working भी नहीं है ना, compiled. 2 and 3 में से you have to choose. Now compiling it from several government agencies documents या फिर compiled from documents provided by, right? ये थोड़ा लेंथी है, बट किससे कंपाइल किया, डॉक्यूमेंट से किया है ना, तो ये सीधे सीधे भी मतलब बेसिकली आपने कंपाइल किससे किया, सब्जेक्ट और उसकी इंफॉर्मेशन पास पास रहनी चाहिए. सो 3 compiled from documents provided by agencies. The investigative commission किसने compile किया, investigative commission. So compiling, compiled, they produced, like past tense, produced this had, so compiled past is what we need. ठीक है. Okay, next question everyone. So in addition to being more expensive than manual, what is more expensive than manual research? Compounds? No. Machine research. Manual research से machine research, not compounds. Right? So यहाँ पे research ही चाहिए हमें दूसरी. It is lower in quality than those compounds. How can we compare compounds with research? We can say machine-based research often identifies compounds that are lower in quality than compounds identified by manual research. So compounds with compounds is what we are comparing in option 2. Right? Everyone take a look. ठीक है. Next question. देखो ये. Stereos are already a standard. पहले तो R चाहिए, right? कहाँ पे stereos being is, as since stereos are standard feature on many automobiles, more car companies are including CD players, multi-disc changer as added incentive to buyers. So yeah, all right. All right. So thank you for watching, students. If you like the video, please let me know in the chat box, comment box. Also, आपको कुछ भी चाहिए practice करना है from certain concepts, let's say, या more marathon, certain more type of questions, so लिखो chat box में so that I can bring that for you. At the same time, जो next workshop होगी NMAT की कल ही होगी, of course.
हमारे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, इन मैट इज अराउंड द कॉर्नर। उसमें मैं आपको मैक्सिमम क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जैसे आज हमने ग्रामर, वोकैब और ऑफ कोर्स रीजनिंग किए, बट लाइक अपने को रीजनिंग बहुत आता है जिसके लिए अलग से ध्यान देना पड़ता है। सो बहुत सारे सिलॉजिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, राइट, कॉज एंड इफेक्ट, वो जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे आपके वर्कशॉप 2 में मेजॉरिटी वही क्वेश्चंस होंगे। सो मेक श्योर you watch it, or you solve all those questions, also practice all those questions, and also join our group for more discussion, doubt solving, to get our material, study material for more practice. Thank you everyone. Bye bye. Have a nice day. See you soon.